very supportive, very kind and motivative. Thank you, Vipin sir. And all my co-actors. I mean, you are not just the co-actors, you all are an inspiration for me. Legend of Indian cinema, Prem Chopra ji. Then my co-star, obviously. I mean, it's a pleasure to work with him. Beautiful Bruna. So yeah, I mean, I'm very excited. And coming down to my experience till now, I've already worked with Vipin sir in his previous film. So I've worked with in his album. So I knew them from before. And they were very sure that, I can pull the character and I deserve to be where, they have placed me. Awesome. So that's how it started 4-5 months back. They auditioned me, they liked me, and they got me. And it's a wonderful platform. It's a wonderful platform. Thank you, everyone. Thank you, Sasha. Thank you. All the best. And a couple of words from you about how it is to be associated with the team of people here. And so as you all know, this is not my first, but still I'm really excited. I love what I do, and I couldn't be more honored to be here with you guys today. I know it's going to be awesome. I want to make this fun, so I'm really excited. I'm really excited to work with such senior actors, and the director himself, Vipin, that put his trust on me for this character, and I am going to give my 100%. I'm really excited. It's just the beginning, so there's really nothing much we can talk about now, but let the journey begin. Awesome. Really all happy. The best. All the best. I'm now going to request Mr. Vipin and Mr. Singh to come on, and then we'll go on to unveiling the logo of the film. I'd actually like to ask you how is what I asked them, and a question for the cast of the film in general is, how is it that... Yeah, sure. I'm just covering people. Yeah. How is it to be associated with this group of people? It's wonderful, wonderful, wonderful. I'm very glad to be here. Why? Because the whole team is so much involved, and that is very important when you make a film. That everybody is very passionate and obsessed with the making of this film. And I'm definitely sure, because of the script that I have gone through or been narrated, this is very, very interesting, very good. वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं कितना शरीफ आदमी रहा हूँ, लेकिन इस फिल्म में मैं ज़रा अलग किस्म का रोल कर रहा हूँ, जो कि मुझे बड़ा एक्साइट किया जिन्होंने, और आप देखिएगा कि ये चेंजेस आएंगी इस फिल्म में, जिससे बहुत लोगों के कैरियर जो हैं वो अलग अलग किस्म की तरफ जाएंगे. वो कहते हैं ना कि जैसे इन्होंने कहा कि वो जाए शमा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, अरे मायूस ना होना, इरादे ना बदलना, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है. तो ये देखिए, ये जो है ये मेहनत का नतीजा होता है. बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं कि लेकिन उनको सही ब्रेक जब मिलता है तो उनका भी आगाज शुरू हो जाता है. I wish all the best to everyone, and thank you, all of you, very supporting, and thank you so much for everything. Thank you so much, sir. We will now like to go on to unveiling of the film's logo. I'd like to call Mr. Bijendra Kala on stage, please, as well. Okay, he's not here with us at the moment. I'd request Mr. Singh and Sir to please do the honors and unveil the logo, please. Okay. Two people that side, yes. Please. Okay. I see. Yeah.
Thank you very much. I would request all of you kind people to please stay on because what I'd request now is वहाँ का एक्सपीरियंस यार आई फील मेरे लिए तो बहुत रियल था और जो हुआ एक फ्लो के साथ हुआ कुछ भी मेडअप तो था नहीं वहाँ पे बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो यू नो आई वाज नॉट एक्टिंग इन द शो या फन किया मस्ती की मजाक किया एंड बैक ऑफ द माइंड देयर वाज समथिंग कि यार एंटरटेन भी करना ही है लोगों को चलो अगर कोई लड़ेगा तो लड़ाई में भी एंटरटेन करते हैं यू नो तो वो माइंड में था और यहाँ पे देखा जाए तो जब मैंने सुना फिल्म के बारे में सो देयर इज़ अ लॉट टू प्ले यू नो सो दिस गाय इज़ अ कॉन गाय सो काफ़ी खेलता है पूरी फिल्म के अंदर और तो मुझे अच्छा लगा कई किरदारों में आता है तो आई थिंक उसी को यहाँ पे थोड़ा यूज़ करूँगा और उस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी सो आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक इट इन फ्यूचर व्हेन वी ऑल विल बी रिलीजिंग द फिल्म Hello, Prem sir. Towards your left. before we take another question, I'd like to invite on stage Mr. Vindu Dara Singh as well. Yes, please, please come on stage. Anji, Mr. Singh, as well as Mr. Morani. Rani Saab. Round of applause, please. Anything you would like to say as friends of the team? Mr. Morani, for instance, any words that you might have for the team, for you know, wishes or... All you need is a good vision and hard work. I think the team has done fantastic. They're loving the script, and I would like to congratulate all of them and wish them all the best. Also, it's Gautam's first film. I think everybody's looking forward to see him. He's a massive craze these days. So, and I think he's signed 3 films with Balaji. This is the 4th, and another few films he's looking at. So I think wish him all the best, and all of you all the best. Thank you so much. इस फिल्म का म्यूज़िक मैं आपको अश्योर करता हूँ कि बहुत अच्छा म्यूज़िक आपको पसंद आएगा और गाने हिट होंगे इसके सारे. We have already recorded the music, but today we don't want to disclose. And on this music we have worked for the last 8 months, and very nice music, very soothing music, even foot tapping music you will find. I can assure you, you will all like this the music of this movie. Hello, Prem ji, आपने हर जी हाँ, मैंने हर किस्म के रोल किए हैं. अभी ज़रा ज़्यादा ही शरीफ आदमियों का रोल कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप इस रूप में भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे. आप पिक्चर डिपेंड करती है कमर्शियली जब सक्सेसफुल होती है तो हर एक्टर आजकल तो लोग इस कदर हो गए हैं, दे आर अवेयर ऑफ the performances and they do not differentiate or they do not typecast a certain actor. He is playing a bad man, so he will always be a bad man. If the same bad man plays a good role, good man's role, and his performance is very convincing, so they accept it also. आज के विलेन जितने भी आ रहे हैं बॉलीवुड में, उनके बारे में क्या राय रखते हैं? जिस तरह की इमेज बॉलीवुड में है विलेंस की आज के दौर में. आज के बाद आज के दौर में विलेंस, जिस तरह के विलेंस आ रहे हैं, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? कौन से डॉन्स? विलेंस, हर तरह के विलेंस जो भी हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा में. देखिए सब ने अपनी अपनी जगह बनाई है और बहुत उम्दा काम किया है बहुत लोगों ने. और जो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट होता है, there is a great amount of hard work, there is a great amount of effort behind. It's not an easy job to stay in this show business because of somebody's recommendation or somebody's contacts. It is your talent which helps you to go ahead. It's your talent which gets you more work. Thank you. यार अभी मैंने साइन नहीं की यार. अभी मैं बताऊंगा, अभी मैंने साइन की नहीं है.
I'll tell you, थोड़ा पेशेंस से नहीं नहीं अभी साइन नहीं किया है मैंने, बट मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, मैं जब भी साइन कर लूंगा, सो देन आई लेट यू नो। नहीं अभी साइन की नहीं है, बट आई डेफिनेटली लेट यू नो अगर कुछ भी ऐसा रहेगा इन फ्यूचर, फॉर श्योर मैं पहले बताऊंगा, सबसे पहले आई कॉल यू गाइस, नो यार, आई कॉल यू फॉर श्योर। हाँ वो सब पता नहीं यार, वो सब तो पता नहीं, अगर वैसे तो फैमिली फिल्म है और वो सब तो नहीं होगा, बट ये कि मज़ा बड़ा आएगा देखने में, कॉमेडी होगी, मस्ती होगी, मजाक होगा और फन होगा, टशन होगा, सो एवरीथिंग विल बी देयर वेयर सबकी फैमिलीज आराम से जा सकेंगे फिल्म देखने, और आई एम श्योर डेफिनेटली दे आर गोना एंजॉय। नहीं कुछ अलग करेंगे, साथ साथ अपना देखते हैं अगर कुछ अलग सामने आता है, सो एक आध प्रोजेक्ट है जो कुछ अलग भी है, बिल्कुल हटके है थोड़ा, वो भी मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में तो अभी बिल्कुल बात नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली आपको शायद जब व्हेनेवर दोज पीपल विल टेल मी अबाउट इट कि व्हेन आई कैन डिस्क्लोज इट, देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो वो थोड़ा अलग है और वो तो आई थिंक पूरा देश जाएगा देखने, वो फिल्म ऐसी होगी। What made you say that? No? No, I'm not. Yeah. Hi, Bruna, over here. Yeah. Since you are a foreigner, and I think you are going to be the glam question for this project, for this movie. So, will you? टेलीविजन से, और अभी झलक का भी मुझे ऑफर आया था, और एक जी का होस्टिंग करने के लिए भी आया था, बट अभी क्या है, अभी एक लंबा शो करके आया हूँ, तो बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए। एंड ऑफ द डे ज़्यादा ऑफर इतने भी टीवी से नहीं आ रहे, बिकॉज दोज पीपल ऑल्सो वांट मी टू गेट इनटू फिल्म्स ओनली, सो व्हाई नॉट, यू नो, सो आई एम गेटिंग फिल्म ऑफर्स ओनली, सो आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग टूवर्ड्स दैट ओनली। अभी तो फिलहाल टीवी का खुद वो लोग भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं यार थोड़ा फिल्म, तू फिल्मी है, तू फिल्म कर, और हम तेरे को एज ए हीरो देखना चाहते हैं। तो ये उनका बड़प्पन है कि वो मेरे को एज ए हीरो देखना चाहते हैं, और आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि सबका सपोर्ट है, आई एम रियली हैप्पी। सॉरी टू हैव इंटरप्टेड यू, वी हैव विद अस। एक सवाल है मेरा यहाँ पे, आपने अभी कहा कि आपका बहुत अच्छा किरदार है फिल्म के अंदर, और हाल ही में शशि कपूर साहब को दादा साहब फाल्के, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, लेकिन अब फिर बताना चाहता हूँ कि शशि कपूर साहब के साथ मेरी फिल्मी कैरियर ऑलमोस्ट शुरू हुआ था आमने सामने फिल्म में। तो ही वॉज ए वेरी वेरी कोऑपरेटिव एक्टर, एंड ही वॉज टोटली ए टीम प्लेयर। तो जब हम लोग तो खैर बिल्कुल नए थे, ही वॉज ए सुपरस्टार एट दैट टाइम, लेकिन हम अरे इतने करीब आ गए थे, मजाक चलता था हमारा बहुत, लेकिन वो बड़े सीरियस हो जाते थे, मैं बड़ा कॉन्शियस हो जाता था उनसे। तो साहब मैं किस्सा बताता हूँ आपको कि मेरी फर्स्ट पिक्चर जो थी, वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स ऑफ माय करियर वाज आमने सामने। तो उसकी शूटिंग के सिलसिले में हम गए वैसे कश्मीर, श्रीनगर में। तो शर्मिला टैगोर जी और शशि और मैं, 3 आर्टिस्ट थे, मैं उसमें आई वाज प्लेइंग द बैड गाय। तो लोग आते थे, वो ऑटोग्राफ लेते थे शशि कपूर से, शर्मिला टैगोर से, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ती थी, तो ख्याल करते थे उनको याद नहीं रहता था ये कौन आदमी है। तो वो मेरे पास आके ऑटोग्राफ आप भी दे दीजिए, तो मैं बहुत खुश होता था, ऑटोग्राफ देने लगता था, सडनली एक हाथ आता था, ऐसे खींच लेता था, नाम बताओ पहले इनका, कहते जी ये मेरे ख्याल में सुनील दत्त, नहीं सुनील दत्त नहीं, जाओ। तो वो इस तरीके से वो काफ़ी लोगों को गुमराह कर देते थे। अब एक दफ़ा वो शॉट में फंसे हुए थे, और मेरे पास एक आदमी खामोशी से आया, जी आप ऑटोग्राफ देंगे? मैंने कहा दे दूँ। तो मैं देने लगा, शॉट छोड़ के मेरे पीछे भागा, मैं आगे जाके अपना नाम पूरे कैपिटल वर्ड्स में लिख दिया। मेरा मतलब कहने का यह था कि he was such a lively man and such an entertaining person on the set. He would keep a very, very happy atmosphere. It saddens me to see such great people are
physically unable to do great work which they would have done now, with all their experience, with all everything. But I wish him a long life, and my congratulations to him. It is a very deserving award, which he should have got a little earlier. But anyway, he got it. That's the greatest thing. Thank you. लखन बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़े स्टूडियोज के साथ करण जौहर, फॉक्स, इरोस सबकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया था कि आउटडोर होर्डिंग्स पे पैसा स्पेंड नहीं करेंगे. तो इस पे आपका क्या राय है? इस पे आपके बिजनेस पर कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि यू आर नोन टू हैव पुट द मैक्सिमम होर्डिंग्स. आपका क्या राय है सर इस पे? एक्चुअली पैसा तो लेता ही हूं ना. अभी तो कल 1 अप्रैल है और अप्रैल फुल बनाएंगे या सच्चे में अमल होएगा? नहीं सर, ये अप्रैल फुल जोक नहीं है सर, ये बहुत पहले आई थी ये न्यूज़. खबर है लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है. अभी मैंने एक यूनिवर्सल का इंग्लिश पिक्चर का काम किया है. वायाकॉम मेरे से कोटेशन मंगा रहा है, टी सीरीज मंगा रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं किया है. तो अभी 1 महीना ये लोग का यूनिटी चलेगा. शायद मैं भी थोड़ा टका बिजनेस. सर बट ये सही है या गलत है आपके हिसाब से? लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्शन को स्टार का खर्चे और बाकी सब खर्चे कम करने चाहिए. पब्लिसिटी और ये तो उनके जबरदस्ती का तो है नहीं खर्चा. ये तो खुशी की बात है कि उनकी मर्जी से वो लोग बजट देते हैं और पीछे चलनी नहीं चलनी. बट आप मानते हैं कि स्टार्स के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो कम होना चाहिए? 100% प्रोडक्शन को. मतलब आउटडोर होर्डिंग्स पे नहीं होना चाहिए? वो तो नॉमिनल बजट रहता है. 25-50 लाख में 1 करोड़ की पब्लिसिटी मिलती है. ज़्यादा नहीं बताया. इसकी जो फिल्म की यूएसपी है, इसकी स्क्रिप्ट है. तो स्क्रिप्ट जैसा आजकल फिल्में चल रही हैं कि कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, स्टार कास्ट कोई मायने नहीं रखती है. तो मैंने कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया. बट फॉर्चुनेटली लकीली हमको अच्छे लोग मिल गए, लाइक गौतम गुलाटी मिल गए, प्रेम चोपड़ा जी मिल गए, आशुतोष राणा भी इस फिल्म में आज आए नहीं हैं. तो ओवरऑल जो फिल्म की स्क्रिप्ट, फिल्म के स्टार कास्ट, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं इस फिल्म में. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. ये फिल्म कुछ अच्छा ही करेगी. आपको सर मालूम है कि जो क्रिएटिव बिजनेस होता है, जो फिल्म बिजनेस होता है, वो सबसे रिस्की होता है. तो आर विजन का जो फिलॉसफी है कि नए कलाकारों को मौका देते हैं, तो उसमें कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है? अभी गौतम गुलाटी को आप मौका दे रहे हैं बड़े पर्दे पर, तो कितना आप ये समझते हैं कि रिस्क फैक्टर है ये? अब टाइम चेंज हो गया है. पहले एक टाइम था जो जब बड़े बड़े स्टार कास्ट होती थी, फिल्में नाम से चल जाती थी. आजकल वैसा टाइम नहीं है. टाइम चेंज हो गया है. आजकल बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में भी फ्लॉप होती हैं, और जो आजकल कंटेंट बेस्ड फिल्म होती हैं, जो रियलिटी पर बेस्ड होती हैं फिल्म, वही फिल्म चलती हैं. तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, और हम लोगों की कोई बहुत, इट्स नॉट ए वेरी बिग बजट फिल्म. वी हैव वर्कड इन ए वेरी लिमिटेड बजट. और हर एक इस फिल्म में एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ कि एवरीबडी वांट्स टू गिव हिज बेस्ट इन दिस मूवी. तो ये बहुत अच्छी है. गौतम गुलाटी हमारे डायरेक्टर से एक बार उनकी मीटिंग हुई थी, तो उसने कहा पहले आप मुझे स्क्रिप्ट सुनाओ. उसने कहा ठीक है. जब स्क्रिप्ट का नरेशन दिया तो ही वाज सो एक्साइटेड. बोला ये बॉस आपकी पहले, मेरे को और भी काफ़ी ऑफर्स हैं पर ये पहली फिल्म मैं आपके साथ करूँगा बिकॉज इसकी स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी. और बड़ी रोमांटिक कॉमेडी है ये, और अच्छी फिल्म. Thank you. Tell us about your character in the film. What type of character you are playing? So, hello everyone. I'm playing a girl called Julia. I am going to be paired with Prem Chopra ji. I know it's a really odd couple, but it's going to be awesome. And most of the time, yes, I am only interacting with him. And there is a little twist to my character, which I don't think I can say it right now. But all you need to know is that I'm going to be playing alongside Prem Chopra, and I am thrilled about this. After a long time on the big screen, and this particular project, how come this came? I know. Last thing I did was a character in Jeho, and now this role is much bigger, and I'm really happy. More than anything, I'm really excited to play, to act alongside such a senior actors, like I said, Prem Chopra and Ashutosh Rana. I mean, I'm so excited, I can't even tell you guys. So this is going to be fun. We're going to start shooting soon and hopefully releasing this year. So any
any other projects in the pipeline after this? So you guys know I'm still shooting for comedy classes, right, on Life OK? So that's also fun. I love shooting that. But I think I'm going to dedicate a little extra time to the film now. Thank you guys, thank you. जिसमें बहुत गाने कुमार सानू, उदित नारायण, ये लोग जो सिंगर्स थे बहुत बड़े बड़े अच्छे हैं और अब तो बहुत सिंगर आ गए बहुत आ गए It's good. Lots of new talent is coming. There's a lot of work now. Not only in the film, in the TV also. क्या प्रेम जी का कोई ड्रीम रोल अभी तक बचा है कि कर चुके हैं? मेरा ड्रीम रोल जो है वो तो डिपेंड करता है लोग क्या देखना चाहते हैं. मैं चाहता हूँ जैसे एक रोल गॉडफादर का मार्लन ब्रांडो ने किया था वैसा एक सेंट्रल कैरेक्टर मिले जो कि इस फिल्म में मुझे उसके आसार नजर आ रहे हैं. देखिए जब पिक्चर रिलीज होगी तो कितना होगा क्या होगा. उड़न छू या तो हमें उड़ा देगा या फिर. प्रेम जी आपके साथ कभी किसी ने कॉन किया है? कोई ऐसा हो जो कॉन करके निकल गया हो? बताइए असलियत. हर एक आदमी के साथ कोई ना कोई तो कॉन करता ही है. कोई एक कहानी अगर आप शेयर करना चाहें. शुरू में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था जी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है. तो एक बड़ा पतला सा एक एक्टर होता था जेरी करके हमने पिक्चर में देखा तो मुझे मिला वो स्टेशन ट्रेन में सफ़र करते थे जी. तो मुझे मिला मैं उसको मिला मैं कहा यार मैं आपकी पिक्चर देखी बड़ा कुछ हुआ. तो मैं शिमले से आया था कोट वोट पहना हुआ था. तो वो करते करते स्टेशन में उतर के याद कोट देना जरा मुझे सब्जी लग रही. तो मैं उनको कोट देने कहा हाँ ये जरूर है. कोट उतार के दिया कि बाहर जाके दे देता हूँ. तो कोट दिया तो मैं इधर मुँह देखा तो मैं कहाँ गया बंदा गायब था. मेरा कोट आज तक नहीं मिला और फिर वो मुझे मिला कई दफ़ा पिक्चरों में छोटे छोटे रोल करता था. मैं भी कहा जाने दो यार क्या है. अच्छा उसका दाव पेश लगा गया. थैंक यू. प्रेम जी आपका नाम विलन के तौर पे भी फेमस है और प्रेम वर्ड हीरो के तौर पे भी फेमस है जो कि सलमान खान ने कई फिल्मों में अदा किया है. अभी फिर आ रहे हैं. इस प्रेम वर्ड से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप शब्द? प्रेम जो वर्ड है वो फिल्म प्रोड्यूसर्स बड़े कॉन्शियस इसके बारे में कि जिसका नाम प्रेम रखेंगे वो पिक्चर ज़रूर कामयाब होगी. तो आपने तो ये तमाम हीरोज़ का नाम प्रेम रखते हैं या विजय रख देते हैं. अभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने की सोचा है प्रेम जी आपने? ऑफर तो काफ़ी आए होंगे लेकिन आपने नहीं किए. 4-5 कर चुका हूँ. एक तो द थ्रेड किया था जिसकी शूटिंग हमने अमेरिका में भी की और शिमला की थी. दूसरा एक 4-5 पिक्चरें की जो बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ की और अमेरिकन एक्टर्स थे सारे. सिर्फ मैं इंडियन एक्टर था उसमें. और एक पिक्चर थी जिसमें मैं भी था और रोशन सेठ भी था. बाकी सब फॉरेनर्स थे. तो बहुत तजुर्बा अच्छा है. वहाँ भी काम करने का तरीका ये है कि साहब वो बड़े पंक्चुअल है. यहाँ कभी कभी हमारे एक्टर लेट भी आते हैं. वहाँ कभी बर्दाश्त नहीं करते कोई भी हो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर द सुपरस्टार और यू आर नॉट अ सुपरस्टार. लेकिन आपका जो ट्रीटमेंट एकदम बराबर मिलेगा. लेकिन जहाँ तक काम का सवाल है यू हैव टू बी ऑन टाइम. तो शिमले में इतनी सर्दी में भी हम शूटिंग के लिए जाते थे दूर कोई 6 या सुबह पहुँचना बर्फ़ें पड़ी हुई हैं. लेकिन उन्होंने कहा जी everybody has to be there in the lobby by 5:30. So 5:30 everybody has to be there. If somebody misses to be there by 5:30, the cars will leave. Leave him alone. He'll have to come by taxi, but he'll have to be there. ऐसा है. यहाँ पर ये नहीं है. They don't want to annoy actors. They don't want to annoy stars. वहाँ इसलिए लोग बड़े डिसिप्लिन्ड है. ये थोड़ा सा फ़र्क है जो हम इस इंडस्ट्री में लाना चाहेंगे और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो गई है. अब यहाँ पर भी लोग जो पहले जो बाउंड स्क्रिप्ट नहीं होते थे अब बाउंड स्क्रिप्ट होते हैं. विजुअल्स आ गए हैं, स्पेशल इफेक्ट्स आ गए जो पहले नहीं होते थे. थैंक यू. अरे प्रेम जी एक लास्ट सवाल. आपने हॉलीवुड फिल्मों में अगर काम किया है तो हॉलीवुड में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का क्या दर्जा रहा है? मतलब क्या उनके व्यूज़ हैं बॉलीवुड के बारे में? देखिए वो तो एक जब हमने काम किया उसमें बहुत सी फिल्में थी तो जब उनको बताया गया कि उन्होंने पूछा यार आपने मैंने कहा मेरा करियर के अबाउट 45 years to 50 years है जिस कितनी पिक्चरें कर चुके हैं आप? मैंने कहा 500. He was flabbergasted. 500?
feature films you have done. We don't believe. मैंने कहा यार बिलीव कर ही लो, यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा लोगों ने किया हुआ तो ये उनका ताजुब होता था. थैंक यू. तो ये जो था ये सारा तजुर्बा रहा और उनकी ओपिनियन अभी आपने बॉलीवुड फिल्म्स के बारे में बड़ी चेंज हो गई. पहले तो बॉलीवुड एक्टर्स भी वहाँ जाना चाहते थे. आपके बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स हैं, दोज हु हैव शोन इंटरेस्ट वर्किंग इन बॉलीवुड फिल्म्स, because Bollywood films are recognized all over the world now. It has a market all over the world. Thank you, sir. Thank you. बैटरी खत्म हो गई. लाइन में रखना मेरे भाई. दीपक टोनी नो इस टोनी रहे होंगे, लेकिन उड़न छू को ही चुनने का क्या मेन उद्देश्य था? यार अभी कई चुने हुए हैं मैंने तो वैसे बट ये कि अभी ये स्टार्ट पहले हो रही है तो हम लोग पहले उड़न छू ख़त्म करना चाह रहे हैं कि चलो उड़न छू को अनाउंस करते हैं पहले और फिर उड़न छू को ख़त्म करते हैं, फिर दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा मेरा. सो अभी बस चल रहा है और लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है. बट आप लोगों की बस ब्लेसिंग्स चाहिए आगे. आपकी ब्लेसिंग से ही काम होगा यार. जिस तरीके से करियर आपका चल रहा है या जिस तरीके से आप धारावाहिक के बाद बिग बॉस और फिल्मों में आ रहे हैं, कभी ऐसा सोचा था आपने कि इस तरीके से मैं इन फ्यूचर? मैंने ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था बिकॉज इट्स अ टफ थिंग टू गेट इनटू फिल्म्स. इट्स नॉट दैट इजी टू लॉन्च योरसेल्फ अलोन. यू नो अपने दम पर खुद को लॉन्च करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग. तो बहुत मुश्किल होता है आपके लिए. बट खुद एक बचपन से ही माइंड में था कि यार करूँगा तो अकेले ही करूँगा, कुछ करूँगा ज़रूर. यू नो ऐसे हार नहीं मारूँगा कभी भी. सो बट एंड ऑफ द डे टच वुड इट्स हैपनिंग एंड आई हैव अ ग्रेट फीलिंग. आई फील ग्रेट अबाउट इट कि व्हाटएवर आई यूज्ड टू थिंक आई एम एबल टू डू दैट नाउ. बट ये भी लोगों की सपोर्ट की वजह से हुआ है कि बिग बॉस में अगर मैंने जाने का एक डिसीजन लिया तो वो डिसीजन मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा. और इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ बिग बॉस, बिकॉज पीपल गॉट टू नो अबाउट मी एंड पीपल हैव गिवन सो मच ऑफ लव टू मी दैट उनकी ब्लेसिंग्स और उनका प्यार. आज मैं चाहे छोटे बच्चों से मिलता हूँ या उनके मम्मी पापा से मिलता हूँ या उनके भाई बहनों से मिलता हूँ या उनके दादा दादी से मिलता हूँ, तो वो हर एज ग्रुप पसंद करती है और हर एज ग्रुप एक ब्लेसिंग्स देती है. तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्यार तो वही है. आगे चाहे फिल्मों में जो भी हो, बट मेरे लिए जो उन्होंने मुझे हीरो बनाया, जो मुझे प्यार दिया बच्चों ने या उनके माँ बाप ने या बड़ों ने, तो आई थिंक एक रियल लाइफ हीरो बनाना ही बहुत बड़ी बात है. और उन्होंने सपोर्ट किया है, वोटिंग की है, प्यार दिया है, 86% पे जिताया है शो. तो आई थिंक जो कि पूरे 8 सीज़न में आज तक नहीं हुआ. सो इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड आई फील प्राउड कि यार इतना प्यार अगर उनका नहीं मिला होता तो शायद कुछ भी नहीं होता. बट इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ पीपल एंड दे आर कनेक्टेड टू मी. एंड today I don't have to explain myself. Wherever I go, they just come and hug me and I hug them back. Because I don't think like that कि यार मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि you should be very real even with them because only because of them you are there. So even I hug them back. Even if I don't know them, I hug them back. You know. So मुझे अच्छा लगा because I can understand their feelings when they जब वो मेरी feelings को समझ सके जब मैं घर के अंदर था, तो मुझे भी समझना चाहिए कि वो मुझसे प्यार करते हैं. तो मैं इसलिए आगे से जाता हूँ और कोई मेरी तरफ प्यार से देख भी रहा होता है, मैं कहता हूँ हे यू नो, तो मैं गले लगा लेता हूँ. सो आई रियली लव द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी. सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. गौतम, अगर फिल्मों की बात करें तो काफ़ी ऑफर्स तो आ ही रहे हैं आपको, लेकिन आप किसके साथ काम करना चाहते हैं? कोई ड्रीम डायरेक्टर है आपका? सी यार ऐसे अगर आप सोचो तो वो चीज़ें फिर एक उसमें रह ही जाती है. बट सोच में ही रह जाती है. बट आई फील यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. अपने पॉइंट से आपको स्टार्ट करना चाहिए. उसके बाद धीरे धीरे यू रीच देयर. देन ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से अपना बेस्ट काम करो, फिर चाहे आपको कोई भी मिले काम के लिए. एंड बट ये कि अपने काम में डेडिकेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. सो ऐसे आई नेवर थिंक कि मुझे इनके साथ काम करना चाहिए या आई शुड वर्क विद देम. क्योंकि आप एक्सपेक्ट करने लगोगे तो एक्सपेक्टेशंस टूटती बहुत है फिर आपकी. इन लाइफ में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना. मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ. जो भगवान दे रहा है, जो हो रहा है वो हो जाए, बेस्ट है. क्योंकि आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे लाइफ में तो फिर झटका लगेगा तो फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे. आप कहोगे यार क्या ये क्या हो गया. तो वो उस लेवल पे मैं आज तक कभी पहुँचा ही नहीं हूँ, ना कभी पहुँचूंगा. जो भगवान दे रहा है, नॉर्मल ज़िंदगी में भी खुश था और अभी भी खुश हूँ एक नॉर्मल तरीके से. सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी अबाउट इट. पसंदीदा एक्टर, एक्ट्रेस और फिल्म के बारे में अगर आप बताएं जो आपके दिल के करीब है. मैं
मैं सलमान सर को बहुत पसंद करता हूँ कि ज़्यादातर सारी फिल्में मैंने देखी हैं और शाहरुख सर को भी बहुत पसंद करता हूँ. उनका भी रोमांस जब देखने को मिलता है तो ही इज़ टोटली डिफरेंट एंड व्हेन आई गेट टू सी हिज फिल्म्स ही इज़ अ चार्मर एंड बहुत अलग बहुत चार्मिंग पर्सन है और लोगों के दिलों में बहुत प्यार है उनके लिए भी. सो और एक्ट्रेसेस में देखा जाए तो मुझे शिल्पा शेट्टी जी बहुत अच्छी लगती है. उनका काम मुझे आज भी अगर आप उनसे अगर कहीं मिलना हो जाता है तो शी इज़ एग्जैक्टली द सेम द वे शी वाज अर्ली. आज भी आप देखो तो शी इज स्टिल द सेम. सो अभी भी अगर मेरा मिलना किसी से भी होता है तो व्हेन दे टेल मी आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई डोंट बिलीव इट. आई डोंट नो व्हाई. कोई भी एक्ट्रेस मुझे अगर बोलती है ना, आई डोंट बिलीव इट. मुझे बिलीव नहीं होता कि सपोज इफ समबडी सेज शिल्पा जी ने एक बार बोला चित्रांगदा जी ने जब बोला नेहा धूपिया टोल्ड मी आई एम अ फैन. सो आई डोंट बिलीव. मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि यार दे आर माय फैंस. व्हेन ज़रीन टोल्ड मी कि आई एम अ बिग फैन. So I don't believe sometimes. तो मुझे फिर अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार it's so nice of them to even say that you know they have been working since a long time and they are big actresses and they are saying that they are my fans. So I feel great about it. और इतना प्यार even industry से भी मिलता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है. So I'm really happy about it. सलमान भाई का जिक्र हुआ, कोई फिल्म प्लान कर रहे हैं उनके साथ किसी तरह से? मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ यार? वो या कोई डायरेक्टर आप जैसे पता है हमें कि सलमान भाई जो सलमान सर से प्यार इतना है कि दिल से कनेक्शन है. लाइक आई सेड मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता और ना ही कभी एक्सपेक्ट करना चाहिए. पर सलमान सर जिस दिन बुलाएंगे उस दिन आँख बंद करके चले जाऊँगा यार. तो अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं? अभी यार कैसे प्लानिंग, मैं कह रहा हूँ प्लानिंग कभी करनी भी नहीं चाहिए लाइफ में. और अभी बस ये है कि दिल से उनसे कनेक्शन है. मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ दिल्ली दिल में. बट ये है कि कभी भी सलमान सर जो आदेश देंगे बुलाएंगे कभी भी तो आई डेफिनेटली वॉक अप टू हिम. एंड क्यों नहीं यार, उनके साथ कौन काम नहीं करना चाहता. तो अगर वो बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊँगा मैं. गौतम, बायोग्राफीज का ज़माना है. किसी पर्टिकुलर इंसान की आप आत्मकथा का हिस्सा बनना चाहेंगे? बायोपिक यार अभी पता नहीं यार उसके बारे में. यानी कोई पर्सनैलिटी जो आपकी फेवरेट रहे हैं, स्पोर्ट्स में हो या स्पोर्ट्स में मेरे सचिन तेंदुलकर साहब बहुत आई वुड से. क्रिकेट में आई एम अ बिग फैन ऑफ सर सचिन तेंदुलकर. और उनका कौन फ़ैन नहीं है. उन्होंने जो इंडिया के लिए किया है वो आई थिंक आने वाले टाइम पे भी कोई नहीं कर सकता. आज भी इतनी डिसेंसी के साथ वो कहीं पे जाते हैं तो उनका एक अलग ही एक तरीका रहता है. बहुत इज़ अ क्लासी एंड अ वेरी डिसेंट मैन. सो आई रियली रिस्पेक्ट हिम. किसी ने कभी आपको कौन किया है? कोई वाकया बताया अगर घर का या यहाँ का मुंबई में? कौन किया? पागल बनाना मतलब बेवकूफ़ बनाना, पागल बनाना, कुछ लेके बात. यार बिग बॉस नहीं देखा आप लोगों ने? इसके अलावा बिग बॉस से पहले यार मैं सही बताऊँ ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ. और जो कि कहते हैं ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा जल्दी किसी के ऊपर. बट फिर भी वो आदत है. अब अपनी फितरत नहीं बदल सकता ना मैं. कोई मुझे अगर प्यार देता है ना तो मैं आगे चले जाता हूँ प्यार देने उसको. यार मैं कहता हूँ चल यार प्यार मिल रहा है ना, कोई बात नहीं. तो यू नो बट ट्रस्ट कर लेता हूँ उस चीज़ पे. कई बार टूटा है ट्रस्ट उस चक्कर में. बट ये है कि अभी भी मानता नहीं है दिल वैसे ही है मेरा. सो अगर कोई प्यार देता तो मैं आगे से उसको प्यार ही देता हूँ. मैं कहता हूँ यार ये मेरी फितरत है. आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ. यू नो कोई बात नहीं, हर्ट होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हर्ट हो जाएंगे. बट ये है कि एंड ऑफ द डे आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ फॉर एनी वन. हाँ थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए कि ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. बट फिर भी क्या है, नेचर ही ऐसा है यार कि अब ट्रस्ट कर ही लेता हूँ यार. यू नो कोई भी हो, कोई प्यार दे रहा हो तो बिलीव कर लेता हूँ. बट कोई बात नहीं, इट डजंट मेक मी अ बैड पर्सन. यू नो सो गौतम, सलमान ने कहा था कि बिग बॉस के घर के भीतर कई सारे रिश्ते बनते हैं लेकिन जब इससे बाहर निकलते हैं लोग तो कोई एक दूसरे को याद नहीं रखता है. आप अभी देखते हैं जितने भी लोग वहाँ पे थे, आपके दोस्त यार थे. फैक्ट है वो, सच है. सलमान सर ने जो बोला बिल्कुल फैक्ट है वो. आपको अब जैसे इवन इफ दोस गाइज वर अवेयर ऑफ इट, सो आई डोंट नो, बात नहीं हुई किसी से भी. पुनीत जी के अलावा मेरी अभी महक से बात होती है. महक इज़ अ नाइस गर्ल. महक से दोस्ती में बात होती है और पुनीत जी से बात होती है. बाकी किसी से बात एक्चुअली टाइम भी नहीं मिल रहा. ऑन टॉप ऑफ इट यार ही इज़ राइट अबाउट इट. क्या है, आप 4-4.25 महीना आप किसी के साथ रहते हो ना, फिर आपका मन नहीं करता 1 साल बाद देखने का किसी को भी कि यार नहीं बस बहुत देखा है, रोज सुबह अंडे बनाए हैं इनके लिए
बहुत बैंड बजाई है, हाथों की वाट अभी तक लगी हुई है, तो पूरा अभी तक हेल्थ वाइज भी आई एम नॉट ओके। आज भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बट ये है कि थोड़ा सा भी डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए। आई हैव सम टॉन्सिल प्रॉब्लम, सो नॉट इवन गेटिंग रेस्ट यार। 2-4 घंटे की नींद मिलती है बस, दैट्स इट। बिकॉज ऑल द टाइम मीटिंग पीपल on top of it, concentrating little bit on my workout as well. At the same time, काम स्क्रिप्ट पे पढ़ना, उसके ऊपर ध्यान देना। सो एक टाइम पे 2-4 चीज़ें आप कर रहे हो तो फिर हम थकावट की वजह से भी कई बार बीमार हो जाते हो। तो अभी बीमार हूँ मैं, दैट्स वाई अभी एनर्जी थोड़ी सी मेरी लो है। मतलब आखिरी सवाल, जब आप लो होते हैं तो किसे याद करते हैं? हाँ जी, लो फील करते हैं तो किसे याद करते हैं? यार मैं हमेशा अपनी मॉम को फ़ोन करता हूँ पहले तो थोड़ा सा चार्ज हो जाता हूँ। जब भी मैं थोड़ा सा लो फील करता हूँ, आई कॉल हर एंड स्पीक टू हर, और अच्छा फील करता हूँ। सो आई स्पीक टू माई भाभी, आई स्पीक टू माई मॉम एंड बस, और दे ओनली चार्ज मी यार। उनकी वजह से ही आप ज़िंदगी में, आप लोग भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो आज किस लिए काम कर रहे हो? इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि कल को यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योर फैमिली, बिकॉज दे चार्ज यू एंड ऑफ द डे व्हेन यू गाइस गो बैक होम, राइट? तो घर जाने से पहले आप सोचते हो उनके बारे में भी, तो दैट यू हैव टू डू थिंग्स फॉर देम। सो दिस इज़ हाउ, अगर मैं कहीं लो होने लगता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, चार्ज होता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे आई थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचता हूँ, उनको आगे ज़िंदगी में प्राउड फील कराने के लिए, तो आई हैव टू बी चार्ज्ड। Thank you, Gautam, and all the best for the movie.